so many of you. Nitin, Satyajit, Santosh, the regular ones, and those who have joined in for the first time. Namaste, everybody. Namaste, Prashant, Abba, Varsha, Namdev, Narendra. Oh yes, it's not a song. I just want to correct you there. One of the best bhajans we can say. Yash, Shripal, wonderful to see all of you. Great. Those who have joined in for the first time, let me just share with you Happy Minds kya hota hai. Welcome to the Happy Minds family. And Happy Minds is a weekly webinar, satsang, whatever you want to call it. हर हफ्ते हम लोग करते हैं, पिछले 25-26 साल से हो रहा है. This is 1138 HM. And there's a huge lovely family of people who come every week. हम उनको seekers बोलते हैं because they come here to seek more wisdom, more knowledge, more clarity, and they want to use that clarity for their own betterment, for living a better life and making this world a better place. तो ऐसा एक हमारा एक परिवार है जो हर हफ्ते मिलता है, and we have people from all across India and even abroad who come and join every Saturday. So अगर आज आप पहली बार आए हैं, welcome to Happy Minds. And how we take it is we start with meditation, and like आज का सुबह भजन था. So every week we start on meditation. So we connect with this beautiful reality that हम तो सिर्फ माध्यम है, हम तो सिर्फ एक मीडियम है, कराने वाला वो है. शरीर हमारा होता है, लेकिन उसके पीछे की जो पावर होती है, जो एनर्जी होती है, वो उसी की होती है. तो कभी कभी ऐसा होता है कि मन में बात बैठ जाती है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं. वो हमसे करवाता है. हमें सिर्फ करने योग्य होना चाहिए. एंड दैट्स व्हाट आई प्रे टू गॉड एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, कि भगवान मुझे इस काबिल मैं अपने आप को बना के रखूंगा कि तू मुझे चूज करे कोई भी अच्छा काम करने के लिए. So we all have to be ready mentally, physically, emotionally, so that good work happens through us. And with an intent, we have the meditation every Saturday morning. उसके बाद हम एक success story round share करते हैं, where we talk about achievements of people जो मुझसे वो लोग share करते हैं, तो I share with everybody. And after that, then there is my sharing, which is there. So that's the format of Happy Minds. And welcome to this week's Happy Minds. Varsha says, very nice bhajan, sir. It's always, it gives me the feeling of gratitude for everyone. Thank you so much, Varsha. Keep on listening to, there are so many wonderful bhajans. So many people have done some awesome work. And there's so many ways by which we can connect. So listening to bhajans is a great way to connect to Prabhu, to जिसमें भी हमारी आस्था है, उनसे कनेक्ट करने के लिए भजन एक बहुत सुंदर तरीका है. Great. Shalya ji, let me just share a few success stories with all of you for today, and then we move on. This is a beautiful sharing. This week's success stories are kind of sharing more than success stories. So first is from मुझे कल शाम को एक message आया from Santosh Habade, and he says, sir, Namaste MG sir, I'm glad to share that the 50th birthday celebration story of my wife. उन्होंने वाइफ का नाम नहीं लिखा है, लेकिन वाइफ की स्टोरी शेयर करी है. That March 13 was her birthday, which she wanted to celebrate in a different way. So we decided to climb on 5 forts of Chhatrapati Shivaji Maharaj in a day. And that was a wonderful gesture to celebrate and welcome the 50th. And he says 3 weekends we practiced. First we did 2 forts and 3 forts, and then different forts, and then finalized on 5 forts which we wanted to climb. And we started at 4 in the morning and finished by 6 p.m. after walking around 30 kilometers, and most of which was steep climb. We could not have thought about this otherwise, because of the stories we heard from, we hear from you in various speeches and in Happy Minds, which inspired us. We are always thankful to you for it. It was so nice. Thank you, Santosh, for sharing this wonderful story of yours. And मुझे लगता है ना कि ये एक बड़ा एक सुंदर aspect है life का. जब मैंने ये story पढ़ी Santosh ki, that his wife and they both, and along with a few of the team members, they climbed 5 forts to celebrate the 50th. तो ये 50th तो एक मुद्दा है, right? और उस मुद्दे को आपने लिया, एक मुद्दे पे आपने एक story attach कर दी, and you have 5 forts by your side. So what happens is this becomes a lifelong cherishing story.
And this story, when shared with people, it becomes a reason for them to get inspired. और इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ करिए और कुछ करके अपनी लाइफ की एक स्टोरी बनाइए जिससे हम, क्योंकि दूसरों को स्टोरी सुनने में मजा आता है. What do people want from us? ना उनको हमारी वेल्थ चाहिए, ना उनको हमारी नॉलेज चाहिए, ना उनको हमारी यू नो इन टर्म्स ऑफ हम जायदाद क्या छोड़ के जाएंगे. More than that, they what they need from us is the way we have lived our life. Can that be an inspiration for them? और मुझे लगता है कि हम सबके अंदर एक काबिलियत है, हम सबके अंदर एक पोटेंशियल है और एक मौका है that we can be a source of inspiration for many around us. And that's why I share stories after stories of achievements of people. So 50th birthday को उन्होंने celebrate किया, and he says we have been hearing from you the stories of your life. And yesterday only हमारा batch चालू हुआ, Life 360 का the 140th batch, and we have had some great time yesterday. We danced, we laughed, we did drama, हमने सब कुछ किया, and we had some strong moments where we were going through concepts which were difficult to understand. So हमने सब कल किया, and I was sharing with them the very fact that life में हम सब ने stories बनानी है, और stories हमारी खुद की होनी चाहिए ना, because people get inspired by stories. और अगर हम लीडर हैं, अगर हम किसी कुछ लोगों के लिए जिम्मेदार हैं, तो हमारी stories का होना बड़ा जरूरी है. So I was sharing with them that how on my 50th birthday I did 50 push-ups and I did 50 kilometers of walk. So not to impress anybody in the world, but to create a own story for myself. That these stories they keep on, they become आपकी लाइब्रेरी का हिस्सा हो जाते हैं, और फिर कभी भी आपको वो लाइब्रेरी में से वो किताब निकालनी और आपने पढ़नी है. These books should inspire you. So these stories of your life should inspire you. And second, शायद किसी और को भी वो inspire करे. And that's what Santosh said, that your stories have inspired us to make this story. And I'm sharing his story to inspire many of you. तो इस साल आप में से सबके बर्थडे आने वाले हैं ना. It's not that किसी का नहीं आएगा, किसी का आएगा, सबके बर्थडे आने वाले हैं. So the question is, what will you do on your birthday? Will it be an ordinary birthday? And ordinary birthdays कैसे होते हैं? केक काटा, मस्ती करी, सेलिब्रेशन किया, पार्टी किया, ये ऑर्डिनरी है यार. मैं ये नहीं कह रहा हूं ये मत करो, ये तो सामान्य जनता करती है, ये तो पूरी दुनिया करती है. क्या आपने 2-3 केक काट लिए? So a lot of times people feel good about the number of cakes they have cut. अरे ये कोई कारण है खुश होने का? I remember long back, somewhere around 2006-7, मेरा बर्थडे था तो बहुत सारे, I think that day I must have cut around 20 plus cakes. तो इतने लोगों ने केक्स भेजे, कोई केक लेके आ रहा है, कोई मिलने आ रहा है, किसी ने पार्सल किया, and I felt good about it. I had 20 cakes काटे. But in the night when I went to sleep, I said, इसमें कौन सी खुशी की बात है? ये 20 केक काट के मैंने कौन से झंडे गाड़ लिए? And that was the time when I said, no. Next birthday onwards, this is not going to be the reason for being happy. So yes, people love you. People उनको सलाम, उनको मेरी तरफ से प्यार, hug, सब कुछ. Let the cakes come in, but that's not the reason I should feel wow about myself. There are better things, there are bigger things. तो केक काटना, पार्टी करना, मस्ती करना, ये सामान्य है. लेकिन अपने बर्थडे को एक मुकाम बनाना, एक स्टोरी बनाना, so that it becomes our inspiration for you as you go into the next year, for you to take a bigger leap. I think that's something to celebrate about, and that's what he shared. So from his sharing, my sharing for all of you. Another lovely sharing is from Amar Burmicha from Indore. He says, sir, I've listened to HM for the first time last week. और जब आपने DPW का बताया तो ऐसा लगा जैसे आप मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं. आपने आईना दिखाया मुझे, and I promised myself to become a PPW. आप प्लीज हेल्प करिए. अरे बाप रे, मैं हेल्प करूं? अच्छा, बनना तुम्हें है और मैं हेल्प करूं, ठीक है. If you're listening to me here, Amar, or you're listening to me on YouTube, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि this is the first step, that you accepted that there is something which needs to be worked upon. And हम लोगों को ना रेगुलर बेसिस पे आईना देखना जरूरी होता है. We need to see the mirror. So every morning when we are leaving for our work, when we're leaving for a college, or we're leaving for somewhere outside, हम जाते हैं ना शीशे में, और हम शीशे में जाके खुद को देखते हैं. And the first question you have when you look in the mirror and you look at yourself, the first question you have in your mind is, how am I looking?
और मैं हमेशा कहता हूं कि the immediate second question should be, how am I feeling? And if you're not feeling great, then don't step out. You're not looking great and you step out, it's okay. कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, लेकिन आप अच्छा आपको फील नहीं हो रहा है and you step out of your house, it's a big problem. आप कितने लोगों का मूड खराब कर सकते हो, कितने लोगों का आप जॉय एंजॉयमेंट आप ले सकते हो. You don't even know. If you're not in a great mood, if you're not feeling great about yourself, you may just end up being the source of destruction for many people's positive feelings. And वो तो छोड़ो, आप अच्छी फीलिंग से नहीं निकल रहे हो तो अच्छा काम कैसे करोगे? So it's important that before you move out of your home, before you move out of to your workplace, आप जहां भी कुछ अच्छा काम करने जा रहे हो, उससे पहले आपने पूछना है, how am I feeling? So मिरर पे आप चिपका दो, so that it reminds you every day. अपने मिरर में चिपका दो, how am I feeling? So you look into the mirror and you look at that poster, small poster which says, hello बेटा ये भी तो पूछ ले, how am I feeling? तो दोनों क्वेश्चन साथ साथ. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अच्छा ना लगो, अच्छा भी लगो, अच्छा भी फील, अच्छा लोगो, अच्छे कपड़े पहनो, लिपस्टिक पाउडर जो लगाना लगाओ, लेकिन उसके साथ साथ अच्छा भी फील करो. So Amar, happy that you realize that you have this challenge and you sometimes behave like a DPW. क्या था DPW? मैंने लास्ट HM बात करी थी. DPW का मतलब है dead person walking. So there's some people who are like dead people. They're like zombies. And zombies का मतलब क्या है कि they kind of they don't have energy. They kind of drag themselves to workplace. They kind of they don't add on the things around them. They kind of carry their own emotional state which is not very positive. तो वो एक अच्छा माहौल नहीं क्रिएट करते, वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं निभाते, वो एक्स्ट्रा जिम्मेदारी तो बहुत दूर की बात है लेने को, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते. सो दे आर द डेड वेट्स. तो इन लोगों को कोई अगर आपके रिश्ते में कोई ऐसा डेड पर्सन वॉकिंग है तो आपको उसको खींचना पड़ता है, राइट? ये रिश्तों में बोझ बन जाते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस में एक लाइबिलिटी बन जाते हैं. दैट्स व्हाट डेड पीपल आर. तो इनको अलाइव बनना, इनका पीपीडब्ल्यू बनना, इनका पैशनेट पर्सन वर्किंग बनना बड़ा जरूरी है. बिकॉज पैशनेट पीपल आर they're assets to any organization, they're assets to any family, they're blessings to the society, to the world. So when he says that I realized I'm a dead person walking on this planet and I want to be on the passionate person side, I think this acceptance is the first step. आप मेरी मदद करिए, ऐसा उसने कहा है. मैं क्या मदद करूं तुम्हारी, तुम कहाँ हो मुझे मालूम नहीं अमर, बट मैं इतना कह सकता हूं कि keep on attending happy minds and this is the best I can do from my side. And see if you in your city, if you have somebody who can help you, some coach, some guide, everybody needs some coaches, everybody needs some external inputs. तो आपके शहर में जो आपको इनपुट दे सकता है आप उससे लो. अगर आप यहाँ आ सकते हो पुणे में, मेरे से ले सकते हो, मेरे से लो, कोई बात नहीं. बट बिकमिंग बेटर इज सो इम्पोर्टेंट. हमारा अच्छा ना बनना is going to hurt many people. आप ये रियलाइज नहीं करते हो. Are we not giving our best? Listen to me very carefully. We not giving our best hurts many people. It hurts our family. It hurts our organization. It hurts our country. It hurts humanity. हमारा अच्छा ना बनना, हमारा अच्छा ना देना, हमारा बेस्ट ना देना, it hurts so many people. और हमें ये रियलाइज नहीं हो रहा है. और मैंने ये बात समझी है पिछले काफी सालों में. ये बात मैंने समझी है कि ये रियलाइज कराना कि अरे यू गॉट टू गिव योर बेस्ट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. जस्ट सम एक हल्का सा किसी के दिल को छूने की बात है. एंड द ट्रेजेडी इज दैट दिस स्लाइट नज, दिस स्लाइट पुश इज नॉट हैपनिंग टू मेनी. कि घरों में बच्चों को एहसास ही नहीं कराया जा रहा है, ये तेरा बेस्ट ना देना इज हर्टिंग एवरीबॉडी. इट्स नॉट अबाउट द वर्ल्ड्स बेस्ट. It's not about the best in the family. It's all about your best. It's not about the best in the company. It's about your best. कि तुम्हारा best ना देना is hurting, is taking away so much from the world around. And the tragedy is many people are not bothered about it. The tragedy is not many seniors in the family are bothered about it. The tragedy is not many in the organizations as leaders
उनको पड़ी है कि उनकी टीम जो है बेस्ट नहीं दे रही है। वो उस टीम मेंबर का बेस्ट ना देना बहुत से लोगों को हर्ट कर रहा है, बहुत से लोगों के लिए एक प्रॉब्लम वाली बात बन गई। तो आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं हैप्पी माइंड्स में, मेरा ये कहना है आपको कि गिव योर बेस्ट। एंड उसके लिए अगर कहीं इंटरवेंशन लगेगा बाहर से तो लीजिए ना, क्या दिक्कत है? तो उसके लिए अगर इंटरवेंशन लगेगा कहीं बाहर से तो लीजिए इंटरवेंशन। आपकी अगर बॉडी अच्छी होगी, आप जिम में गए, आपने कोई ट्रेनर मान ले लिया और वो ट्रेनर आपके साथ जिम में आपके साथ मेहनत आपके लिए करता है और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करवाता है और आपकी बॉडी जो है स्लिम ट्रिम अच्छी हो जाती है एंड यू गेट कॉम्प्लीमेंट्स। It is not the trainer, it's you who gets the compliments, right? It's you who feels good. It's you who has a long life. It's you who feel great about yourself. It's you who loves to wear some wonderful clothes. It's you who loves to flaunt. तो अगर उसके लिए इंटरवेंशन लगता है बाहर से, उसके लिए अगर किसी बाहर से सीखना पड़ता है तो क्यों नहीं सीखे? तो अमर अपने आसपास देखिए, कोई आपको मिलता है, आपको सिखा सकता है और आपको बैक ऑन ट्रैक ला सकता है, तो प्लीज उसकी मदद लीजिए। सब चीज हम नहीं कर सकते ना। दैट्स व्हाई वी हैव स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस। दैट्स व्हाई वी हैव यूनिवर्सिटीज। क्योंकि हर चीज हम खुद नहीं कर सकते। और खुद से करते तो फिर नहीं होते ना, मैथ्स के टीचर, इंग्लिश टीचर, केमिस्ट्री टीचर्स नहीं होते। तो ये क्यों है? ये है कि जो चीज हमें नहीं आती, ये हमें वो बताते हैं क्योंकि उन्होंने उसमें मास्टरी हासिल करी है। और हमें हर चीज में मास्टरी हासिल करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या चीज करोगे खुद से? तो जो अपना एरिया है उसमें हम अच्छा काम कर पाए, जो हमारा एरिया है उसमें हम अच्छा परफॉर्म कर पाए, उसके लिए अगर कोई एरिया हमें तंग कर रहा है, कोई एरिया हमारी वीकनेस है, हम किसी को ले आते हैं, हमें वो ठीक कर देगा। क्यों बिजनेस करना है? बिकॉज वी वांट टू मेक सम डिसेंट प्रॉफिट्स। वी वांट टू गिव अ प्रोडक्ट टू द मार्केट व्हिच इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। इसलिए तो बिजनेस करना है ना। तो बिजनेस की कुछ बातें नहीं आती हैं तो सीखेंगे ना किसी से। क्या चैलेंज है सीखने में? तो ये बहुत से लोगों का ईगो आ जाता है कि हम क्यों सीखें किसी से। बहुत से लोगों का लिमिटेशन आ जाता है। एंड आई वाज शेयरिंग इन द बैच यस्टरडे, मैं कल ही बैच में शेयर कर रहा था कि आंखों आंखों में दर्द होता है ना। आई गॉट माय स्पेक्टिकल्स, इट्स डिफिकल्ट टू रीड नाउ समटाइम्स, सो आई हैव माय स्पेक्टिकल्स। तो मैं पढ़ने के मैं ग्लासेस यूज करता हूँ। तो जब पढ़ने में दिक्कत होने लगी, व्हाट डिड आई डू? आई वेंट टू एन ऑप्टिशियन। आई वेंट टू सी द डॉक्टर एंड आई सेड, भाई ये प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, आओ दिखाओ क्या है। उन्होंने चेक किया एंड ही गेव मी द प्रिस्क्रिप्शन, भाई आप ये ग्लासेस पहनिए, रीडिंग ग्लासेस। बात खत्म। If you have pain in your teeth, what do? You go to a dentist, isn't it? You have some infection in the air, what do? You go to an ENT guy. There's no shame to it. There is no ego to it. There is no कि नहीं नहीं साहब मैं तो नहीं जाऊंगा। अरे तुम्हारा शरीर, तुम जाओगे, क्यों नहीं जाओगे? इतने सीमित वाली लाइफ है, क्यों नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाना चाहिए? And yesterday also I was sharing in the batch that this is just one life. मेरी डायरी में लिखा हुआ है फर्स्ट पेज में, जो मैं देता हूँ बैच के पार्टिसिपेंट्स को। It is this just one life, just this one innings, just this one appearance which you and me we have. एक ही जिंदगी है, एक ही इनिंग्स है, एक ही अपीयरेंस है। यार पिक्चर तो हिट होनी चाहिए यार। हमारी लाइफ की एक ही पिक्चर आने वाली है। हमारे लिए लाइफ का एक ही गेम है। ये भी टेस्ट मैच नहीं कि सेकंड इनिंग्स में खेल लेंगे। एक ही है, एक ही वनडे है, एक ही T20 है, एक ही अपीयरेंस होने वाला है। और इसमें भी हम सोच सोच के, संकोच कर करके जी रहे हैं, तो क्या मतलब है? यू बिकमिंग बेटर इज इंपॉर्टेंट। You giving your best is important, not only for you, but all those people around you who love you, all those people around you who are connected with you. उन सब के लिए आपका आपका बेस्ट देना जरूरी है। छोटी सी बात है लेकिन बड़े मुद्दे की बात है। हाँ जी, यू आर देयर विद मी ऑल ऑफ यू। सर झंझोर दिया आपने। अरे
अब मेरा काम ही है झंझोड़ना, मैं क्या बताऊं मैं। एंड बिकॉज आई एम अ पैशनेट पर्सन, और जब कोई पैशनेट पर्सन होता है ना, तो फिर वो अ, उसका यही काम होता है, जाने अनजाने में वो झंझोर देता है बेटा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स नॉट फॉर यू, but it's also for people around. If you're a parent, you're not giving your best, is going to hurt your children. Have you ever thought about it? How much of a impact they will have, you will have on them? How much of an impact you will have on them if you give your best? And how much you would hurt them if you were not giving your best? Socho is bad. If not for anybody else, but for a family. You giving your best is so very vital, so very important. And yes, we all need, absolutely right. 100%. Great. Naren says, you always need, absolutely, I agree with you, Naren. We need some guide, we need some coaches, we need some lighthouses, we need some, direction. तो कोई तो हो जो हमें बताए, और कितना आसान हो जाए ना। भाई आप क्या करते हो when you have to travel, what do you do nowadays? So अब तो गूगल का जमाना आ गया है, so what do? You have your Google Maps on, am I right? यही करते हो ना सब लोग। तो आपने अपना गूगल मैप डाला, इफ यू हैव टू गो टू अ लोकेशन व्हिच यू हैव नो आइडिया अबाउट। अगर आपको अपने घर से ऑफिस जाना है और ऑफिस से घर आना है, यू डोंट पुट गूगल मैप्स देयर, यू नो व्हाई? बिकॉज़ यू नो द वे। अगर आप डालते हो गूगल मैप्स, इट्स जस्ट फॉर ट्रैफिक, की ट्रैफिक कहां पर है कहां पर नहीं, लेट मी फाइंड आउट एंड लेट मी टेक अनदर रूट, दैट्स व्हाई यू हैव अ गूगल मैप। बट नॉर्मली यू यूज गूगल मैप्स फॉर गोइंग टू एन अननोन डेस्टिनेशन। और फिर क्या करते हो आप? आपने गूगल मैप लगाया, और गूगल मैप लगा के आपने उसको छोड़ दिया, एंड देन यू हैव दैट मैप इन फ्रंट ऑफ यू। फिर क्या होता है, अभी आपने दिमाग जो है ना, उसमें वापरना बंद कर दिया कि कहां से जाना है, कैसे जाना है, कौन सी रोड लेनी है, किससे पूछूं। अभी आप सिर्फ ड्राइविंग पे फोकस कर रहे हो, somebody else is guiding you। कितना बढ़िया बात होगी। नहीं तो आप क्या ड्राइविंग भी कर रहे हो, आप लोड भी लेके बैठे हो, ये रास्ता सही है कि नहीं है, आप खिड़की खोल रहे हो, फिर किसी को पूछ रहे हो भाई ये रास्ता वहां जा रहा है नहीं जा रहा है। एंड दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू डू इन द पास्ट, that's what we used to do, we every now and then we would stop somewhere, और हम गली में किसी को पूछते थे भाई ये रास्ता वहां जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये गली कौन सी है, वो रोड कहाँ आएगी, ये पूछते थे हम तो। एंड when somebody would tell us, till that time we would be relaxed and we would focus on driving till we meet the next road, and then again we start asking for the road। तो गूगल मैप्स ने क्या किया? तो गूगल मैप्स ने कहा कि यार तुम अपना जो काम कर रहे हो ना वो काम करो, ये मुझ पे छोड़ दो। तो हमने अपना डायरेक्शन देना गूगल पे छोड़ दिया। Now Google is directing us and we are driving and we are enjoying the driving, right? In the same way, in life, do what you're supposed to do. And for that, if you need direction, get somebody to give you direction. So I just for sharing with all of you, we have a sales workshop coming up next month. And then so many have joined the sales workshop because so many have realized, so many people have realized, so many entrepreneurs have realized, यार ये मेरी टीम जो है ये सेल्स पे फील्ड पे जाती है, if they're not trained, they cause more harm than any benefit। क्योंकि एक प्रोस्पेक्ट के पास भेज रहे हैं सेल्स की टीम को, और वो सेल्स की टीम जो है वो उसको सेल्स का एस भी नहीं आता है, और वो सेल्स में है लेकिन वो जा रहा है फील्ड पे, तो वो क्या करेगा? वो उस कॉल को खराब करके आएगा ना। तो बिजनेस आना तो दूर की बात है, वो नेक्स्ट टाइम के लिए वो प्रोस्पेक्ट जो है उसको कभी टाइम भी नहीं देगा। And I'm always of the opinion that what a salesperson gets in the organization is much, much less compared to what he leaves on the table there in the market। तो बहुत सारा बिजनेस, बहुत सारा धंधा तो हम मार्केट में छुड़ाते हैं बिकॉज हमारी क्षमता, हमारी काबिलियत नहीं होती उसको लाने की। A salesperson should be measured by the business which he leaves in the market, not the business which he brings to the organization। तो समझ में आता है कि ये कितना जबरदस्त सेल्स पर्सन है। कितनी मीटिंग्स करनी थी उसको, कितनी मीटिंग्स करी, उन टोटल मीटिंग्स जो उसने करी उसका पोटेंशियल बिजनेस क्या था। उसने अगर 10 मीटिंग्स करी और आपका प्रोडक्ट अगर 1 लाख रुपए का है तो 10 लाख का पोटेंशियल था ना। और वो 10 मीटिंग्स में से अगर वो एक क्लोज करता है
इसका मतलब 1 लाख रुपए लेके आया, आप कहते हो वाह 1 लाख रुपए लेके आया, अरे वो 9 लाख छोड़ के आया, उसका क्या? व्हाट शुड बी हिज क्लोजिंग रेशियो? जब हम उसको उस पे क्वेश्चन नहीं करते, तो वो अपने 1 लाख पे इंसेंटिव कमा के खुश रहता है और हम उस 9 लाख को सोचते नहीं। अगर उसने अपने आप को इंप्रूव कर लिया होता, कुछ सेलिंग स्किल्स सीख ली होती, कुछ सेलिंग्स की एबीसीडी सीख ली होती, एंड आई एम सरप्राइज्ड, ट्रस्ट मी, व्हेन टॉकिंग टू यू आई एम सरप्राइज्ड। मैं इतने इंटरव्यूज लेता हूं, एंड आई हैव आल्सो मेट सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स कि इंटरव्यूज देते समय मैं पूछता हूं सेल्स वालों से, जो सेल्स का इंटरव्यू देने आते हैं, कि तुम 5 साल से सेल्स में हो, 10 साल से सेल्स में हो? कहते हैं हाँ। तुम्हारा घर चल रहा है तुम्हारी सैलरी से? कहते हैं हाँ। तो जिससे तुम्हारा घर चल रहा है, जिससे तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारे, तुम बोल रहे हो कि मेरी जगह बनती है, तुमने उसको अच्छा करने के लिए पिछले 5 साल में, 10 साल में तुमने क्या किताबें पढ़ी सेल्स की? तुमने क्या सेल्स की ट्रेनिंग ली? तुमने क्या किया जिससे तुम अच्छे बने? एंड मेजॉरिटी ऑफ देम हैव नो आंसर. When I say no answer means no answer, they have done nothing. तो ये वो सेल्स के लोग हैं जो फील्ड में जा जाके अच्छे बनते जा रहे हैं, एंड दे आर ओके विद इट, नॉट रियलाइजिंग उनका फील्ड में जाके अच्छा बनना is such a financial loss to the company where they are working. It is such a loss. Because आप फील्ड में जाके एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक एक क्लाइंट को खो के आ रहे हो और फिर सीख रहे हो, अगर आप सीखते हो तो। इससे अच्छा तो आपने कुछ बुक खरीद ली होती 400, 500, 1000 रुपए की, आपने कुछ कोर्स कर लिया होता। लेकिन क्या होता है कि वो कोर्स ना करना, अपने को लगता है यार पैसा बच गया, वो लाखों रुपए जो आने वाला है वो नहीं आता, उसका गम नहीं होता। So whatever field you are in, whatever field you are in, if that's a sincere field for you, if that is what is making you, I'm just saying go and get trained. Not because I am into training business. I'm saying go and get trained by anybody here. It doesn't matter. सबके लिए बहुत काम है, मेरे पास मेरे लिए बहुत काम है, सबके लिए बहुत काम है. But you leaving this world by not becoming a better version of what you were into, that's a shame. That's a tragedy. That's a tragedy. जो आप काम कर रहे हो और उसमें अच्छा बनो यार, जो आप काम कर रहे हो उसमें अच्छा बनो, and that's what will make you a class apart. What is, ये क्या लिखा है? What is best means, sir? समझा नहीं क्या आपने क्वेश्चन? नितिन ये दोबारा पूछो क्वेश्चन, क्या तुमने पूछा है मेरे से? तो जब तक नितिन दोबारा क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा, how many of you have taken up the sugar challenge? We started the sugar challenge 2 दिन पहले. How many of you have taken the sugar challenge? Now, not that you have to, wow, so many of you. So those of you who don't know what a sugar challenge is, हमने 2 दिन पहले Chrysalis ने एक sugar challenge चालू किया कि 21 days we will live, not live, we will have a great time without sugar. So no sugar ऐसे करके इन्होंने बहुत सारे लोगों ने, तो so many who have joined in this no sugar challenge, and कोई हमने उसको रेगुलेट नहीं कर रहे, हम उसको कहीं, we have no role to play, you only have a role to play. that आपने खुद से एक वादा किया कि मैं अगले 21 दिन तक कोई शुगर प्रोडक्ट्स नहीं लूंगा, कोई डायरेक्ट शुगर कंज्यूम नहीं करूंगा. एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू हैव योर मेडिकल क्लैरिटी ऑन इट कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो. बट मेरा ये कहना है कि 2 things. One, इट्स अ चैलेंज. चैलेंज का मतलब क्या है? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप किसी और को चैलेंज करिए कि मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि क्या आप 21 दिन तक बिना चीनी खाए, बिना शुगर खाए रह सकते हो क्या? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं. और एंड पीपल लव टू बी चैलेंज्ड. अगर मैं आपसे कहूं ना कि यार यार तुम शुगर कम कर दो, चीनी मत खाओ, तो तुम ठीक है सर, हाँ ठीक है. लेकिन मैं कहूंगा मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं that you can't live without sugar for 21 days. I challenge you, तुमसे ना हो पाएगा यार. And the moment people are challenged, ऐसा कैसे कह दिया हमसे ना हो पाएगा, अब तो करके दिखाएंगे. So when होता ना कि जब कहीं रोड रेज होता है, कभी देखो ना तुम लोग क्या कैसी हरकतें करते हो, गाड़ी ठुक गई किसी से
और तुम निकलते हो बाहर, तो गाड़ी कैसे ठोक दी, और वो भी गुस्से में बाहर निकलता है, और वो भी कुछ दो डायलॉग बोलता है तुम्हें देख के, एंड तुम उसको देख के दो डायलॉग बोलते हो, फिर तुम्हारे मुंह से निकल जाता है क्या करेगा क्या करेगा, यू आर चैलेंजिंग हिम क्या करेगा, मारेगा, मार कर दिखा, और वो दो लगा देता है फिर, अरे तुमने इनवाइट किया, तुमने चैलेंज किया उसको, और वो लगा देता है दो तुम्हें, तो मेरे दिस इज द पावर ऑफ चैलेंज। सो जो काबिल नहीं होता ना करने के, वो भी तुम्हें दो लगा देता है बिकॉज तुमने उसको चैलेंज किया। तो दैट्स व्हाट द वर्ल्ड इज। तो पीपल दे कांट टेक अ चैलेंज, दे वो मतलब दे कांट रेजिस्ट अ चैलेंज, उसको चैलेंज कर देवे तो वो कर जाते हैं। तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप चीनी के बिना रह नहीं सकते 21 दिन, ना ना, आई डोंट थिंक यू कैन, मुझे गलत प्रूव करके दिखाओ। 21 days without sugar and then we will talk about it कि क्या हुआ 21 दिन बिना चीनी के। तो कल हमारे बैच में काफी लोगों ने नो शुगर किया हुआ था, तो दे हैड, और लंच में गुलाब जामुन से आइसक्रीम्स थी, और एंड कुछ तो वसूली मोड में आते हैं ना कि यार लंच में पूरा अटैक करेंगे खाएंगे, एंड देन दे आर जस्ट टेकन अप दिस नो शुगर चैलेंज, एंड बड़ा मुश्किल होता है। And this is what God does when you take up a challenge, when you want to change a habit of yours, उसी समय वो चीज इतना easily available होती है कि मन ललचा जाता है। But that's where the willpower comes in. So if you really feel, you know, आप लोगों को, and it's not about आपको बीमारी है या आपको you have some challenge with your body, that's why आपने no sugar challenge रखना है, just for the sake of increasing your willpower, just for the sake of testing yourself कि can I resist my temptations, can I hold on to my temptations, can temptations be my slave rather than me being tempted for anything and everything। तो क्या मैं मास्टर हूं या मेरे टेस्ट बर्ड्स मास्टर है, ये एक टेस्ट हो सकता है, right? And it can also be from the perspective of being much more fitter than what you have been or what you are। It's not about कि बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है तब हम ये करेंगे। It's from the perspective of mentally becoming strong, physically becoming strong, and if of course if you have some challenge, you coming out of a challenge also, that is also a possibility। So those of you who have not taken the challenge, take up the challenge। Anji, you have a question which you would like to ask। नितिन तुम्हारा क्वेश्चन था, तुमने पूछा नहीं। I don't know। If you have a question, you can ask me the question। कि क्या था वो पता नहीं, मैं बेस्ट समझा नहीं मुझे क्या तुमने बोला था। Anyways, if you're not, अगर वो if he's not typing it again, this means it's not worth even asking। Anybody has a question for me today? Because we'll wind up early because I need to rush for my batch, and we have the batch starting at 10 o'clock, so I need to rush and be there। इज जैगरी अलाउड? अरे यार ये सवाल ना पूछो मेरे से शुगर चैलेंज वाले। मैं तो कुछ नहीं खा रहा हूँ अभी, तुम जैगरी बोलो कुछ बोलो, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग, नॉट दैट जैगरी मे नॉट बी अलाउड। मैं यार इसमें गया नहीं हूँ। तो ये तुम अपने जो तुम्हारा ग्रुप बने हुए ना नो शुगर चैलेंज के ग्रुप, उसमें तुम पूछो, आई थिंक सम पीपल विल आंसर दैट क्वेश्चन। मेरे लेवल के क्वेश्चंस पूछो ना, मुझे डॉक्टर ना बनाओ। संतोष पूछ रहा है, हाउ डू वी हैंडल सेटबैक्स इन लाइफ? How do we handle setbacks in life? My God, कौन छोड़ के चले गया संतोष तेरे को? देखो, दो तीन तरह के सेटबैक्स होते हैं। एक होता है सेटबैक where we talk about a financial setback, a business setback। एक होता है setback of a relationship which is there। एक होता है setback in terms of you lose a job, and like again it comes into the financial setback or professional setback। एक होता है setback where you have some physical challenge where physically you've gone through something, right? So there's a financial setback, there is a relationship setback, there is a physical body wise setback। Now when it comes to financial setback, I feel they're not setbacks। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। Financially you're down, business is down। I think amongst all the setbacks, मैं बोलूं physical body wise setback
मैं बोलूं रिलेशनशिप वाइज सेटबैक एंड फाइनेंशियल सेटबैक, तो फाइनेंशियल सेटबैक सबसे तुच्छ लेवल का सेटबैक है, इनफैक्ट सेटबैक ही नहीं है, राइट? It is normal, because when you look at your life, when you were born, you were not born with any money. When you were not born with any money, this means you did not bring any money to this planet, right? तो जो है वो यहीं का लिया हुआ है ना, और यहीं का लिया यहीं का चलेगा, तो काहे का सेटबैक है? तुम्हारे प्रॉफिट में लॉस हो रहा है तो तुम काहे का लॉस मान रहे हो उसको? सो यू डिड नॉट ब्रिंग एनीथिंग विद यू. The financial setbacks are okay. How do you handle that setback? You kind of pause and you say to yourself, now this setback is that ये financial loss हो चुका है. Now what do I do? So first is forget about recovering the loss. Focus on what money is needed right now. तो अक्सर हम रिकवरी में चले जाते हैं कि हमें वो पैसा रिकवर करना है जो हमारा चले गया. वो रिकवरी छोड़ो, वो लॉस उसको बुक कर दो, वो लॉस को बुक कर दो. नाउ यू फोकस ऑन अभी की जो मेरी लाइफस्टाइल है उसके लिए कितना पैसा चाहिए, अभी का जो मेरा काम है उसके लिए मुझे कितना पैसा चाहिए. द मोमेंट यू फोकस ऑन आई वांट टू रिकवर माय लॉस, दैट विल स्टार्ट ट्रबलिंग यू, हॉन्टिंग यू, एंड उस चक्कर में आप कुछ और डिसीजन ले लोगे जो आपको और गड्ढे में डालेगा. सो फॉरगेट अबाउट वो लॉस, कट करके बंद करो. नाउ फोकस ऑन मेक लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, and then in this normal life run a bit faster, then run a bit faster, then run a bit faster, and maybe you will see after some time you would have recovered what you had lost earlier, and maybe much more than that. But to begin with, stop the thought of recovering the loss. That's what I can say to you on the financial side. I don't even know what setbacks you're talking about, but I assume it's a financial setback. Relationship setback, if it's a relationship which has left you in terms of रिश्ता टूट गया है, तो ठीक है, ask yourself what is the reason and why it happened, and how you can salvage the entire situation. अगर अपनी गलती है तो गलती मानेंगे, रिश्ता मनाएंगे. ऐसा हो सकता है कि रिश्ता नहीं रहा, means somebody has departed this world. It's a setback. I think that's one of the biggest setbacks which we can have. कि कोई रिश्ता ही नहीं रहा, मतलब now in this world is not there. Then it's a very difficult thing. But then the way to handle that setback is to cherish all those moments you had with the relationship while the person was with you on this planet. वो उसको वही तरीका है उसको हैंडल करने का, उनकी यादें, उस इंसान की यादें अपने साथ लेके आप खुश होइए कि एटलीस्ट गॉड गेव मी द टाइम, वॉट एवर टाइम ही गेव मी विद दैट पर्सन. उसके लिए मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ, राइट? एंड इफ यू हैव अ फिजिकल सेटबैक, तो कुछ चैलेंज हो गया बॉडी में, फिजिकल बॉडी में, now it's a challenge. See if you can retrieve it, if you can recover that, right? So again, focus on what you can do now, then 2, then 3, then 4 steps. If it is an irreparable loss which has happened to you, then accept it, right? There's so many people who are living a life with all that physical challenges and they're living a better life. So you have so many stories around you, and I think that's a way to handle it. So you said fun. So पहले क्वेश्चन हमेशा पूरा लिखा करो, मेरे को इतने फालतू बोलने को लगा है तुमने, संतोष. So he says yes, financial setbacks, financial setback. तो यार सब प्रॉफिट में लॉस वाली बात है. It's okay. Don't get perturbed by it. But वापस उस रास्ते पे मत चलो जिसमें तुम्हें इतना गड्ढा मिला है, right? और सीखो, अगर फाइनेंशियल सेटबैक है, सीखो पैसा कैसे कमाते हैं, सीखो बिजनेस कैसे करते हैं, सीखो धंधा कैसे करते हैं. ये सब चैलेंजेस हैं बिकॉज हम नौसिखिए होके हम जंप लेना चाहते हैं, हमें आता नहीं है कुछ, फिर भी हम करना चाहते हैं, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज. तो हम कुछ पैसा कहीं बचाते हैं सीखने से और उसके बदले में 10 गुना गंवा देते हैं, एंड that's how it is for people. So that's why in the gym आप जाते हैं, I always say get a trainer. क्या प्रॉब्लम है? कुछ पैसे खर्च करो, इन्वेस्ट करो, तो आपको वो सही तरीके एक्सरसाइज बता देगा ना. और फिर क्या होता है, आप वो एक्सरसाइज सीखते नहीं हो, वो कैसे एक्सरसाइज करनी है वो आप समझते नहीं हो. फिर आप अपने जिम में, सोसाइटी के जिम में जाके, जो फ्री का जिम है, आप वहां जाते हो और वहां पर कैसे भी करके मशीनों में ऊपर नीचे एक्सरसाइज कर देते हो, और फिर आपका कोई मसल इंजरी हो जाती है, कोई आपकी बोन इंजरी हो जाती है, कोई आपका फॉर्म गलत हो जाता है, एंड देन यू आर डन, समटाइम्स डन फॉर लाइफ, यू आर डन फॉर मंथ्स. तो क्यों नहीं किसी से सीखते हो, जिससे सीखने से फिर आप वो काम को वैसे ही करें जैसे करना चाहिए.
I'm not saying you have to learn for life, but at least starting with कुछ महीने सीखो, तो आपको समझ में आ जाए कि कैसे करना है एक्सरसाइज, कैसे नहीं करना है. And that's what I did long back when I started gymming. The first thing I did was, भाई ये नई चीज है मेरे लिए, ये weights, ये machines क्या है मुझे बताओ. तो I hired an instructor. He would come and he would be there in my society gym. मेरा gym free था, मेरा trainer था 10,000 रुपए महीने का. And I learned what not to do. I learned how to breathe while exercising. I learned how many repetitions I should do. I learned how to upscale. और मैं रहा 7-8 साल, तो मुझे अभी I can be an instructor to somebody. So you ought to have to understand this, that ये बिना सीखे समझे काम करोगे तो नुकसान होने वाला ही है यार. Sir, I'm in a service industry where जो भी काम करना है, I have to do it myself. So usually I have to work on multiple projects in a day. But even when I'm not working, to next काम करना है, वो दिमाग में चलता रहता है. How do I keep that aside, that enjoy on what I am doing at present? How do I keep जो मैं काम कर रही हूँ वो मैं enjoy कैसे करूं, क्योंकि कोई और जो काम आने वाला होता है वो काम मेरे मन में चलते रहता है. Is that the question? Is that the question? How do I keep that aside? Okay. You have to keep on reminding yourself. You have to keep on reminding yourself, Mansi, and to everybody. What is peak productivity? What is the best output from our side? अगर हम ये बात करते हैं, तो peak productivity is a result of an alignment. मेरी बात को ध्यान से सुनो. Peak productivity is a result of an alignment. Alignment between three things. इन अगर चार हो जाए तो अच्छी बात है, but I'll speak about three. Alignment between your body, alignment in between your body, your mind and your emotions. अगर मैं इसको फिजिकली बोलूं, आपका शरीर, आपके हाथ पैर, आपका हार्ट मींस इमोशंस, और आपका माइंड मतलब आपका इंटेलेक्ट. जब तीनों चीज अलाइंड होती हैं, तो जो आप कर रहे होते हो उसमें पीक परफॉर्मेंस निकलता है. तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं हम अपनी फिजिकली, हम क्या कर रहे हैं, अपनी आंखों से हम उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, राइट. तो दैट्स माय फिजिकल सेल्फ. बट मेरा माइंड जो है वो चल रहा है यार कि वो क्रिकेट में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीती या इंडिया जीती. द माइंड इज टाइम एंड अगेन गोइंग देयर. माइंड में चल रहा है यार, व्हाट्सएप में कोई मुझे मैसेज तो नहीं कर रहा है. माइंड इज गोइंग टू द व्हाट्सएप, राइट. इमोशन चल रहे हैं कि यार बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, आई एम not sure whether I can do this subject. So my emotions are negative. My mind is jittery, right? It's flickering here there, and I'm physically I'm in that activity. तो कैसे होगा? तो जहां हमारा शरीर है वहां हमारा माइंड होना चाहिए, और उस एक्टिविटी से हमारे इमोशंस अलाइंड होने चाहिए. तो जो आप काम कर रहे हो, यू आर डूइंग सम वर्क, you have to keep on reminding yourself, I cannot do two things at a time. I cannot. So right now I'm talking to you right now. I cannot do something else. I cannot. So I can, this body, the design is such that through this body you can do whatever you can do. So if I'm there with you right now, I'm not there somewhere else. So you have to remind yourself कि अगर मुझे इस काम से best output निकालना है, तो let me first get my mind, my body and emotions aligned. That's the first thing. Second is, what job you have to do next. तो आप क्या करो, you have to ask yourself, is it on a priority list very high? If it's on a higher side, then you got to do that first. Na? If it's not on a higher side, then you keep it on a second and you say, okay, this 1 hour for this activity, after that I'll come to that. And if you have kind of blocked that in your mind, you will see it will trouble you less. It'll trouble you less. So ये फ्यूचर का काम मन में आता है, वो तो आएगा because that's lined up, but you got to bring your mind back on the job at hand, and you got to keep on telling yourself, my best will only come when my mind and my body and my emotions are aligned with what I'm doing. Do I want to give my best to this? Answer is yes. Then let me be here. Let me be here. तो ये mind का बार बार भटकना,
ये आदत है। उस माइंड को भटकते हुए माइंड को वापस लाना, ये भी आदत है। तो आपको सेकंड वाली आदत को लाना पड़ेगा, बार 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 वापस लाना पड़ेगा। And it's okay. The mind goes back to the next job in hand. You say, okay, I'll do that. Come back here. Again, after some time, it will go there. No, no, come back here. ये करना है पहले, ये जरूरी है. Again, it will go, come back. ना इसमें जीत किसकी होगी, उस पर डिपेंड करेगा वो काम कैसा होगा। जीत उस भागने वाले माइंड की होगी या जीत बुलाने वाले माइंड की होगी, उस पर डिपेंड करेगा how well the work will go. So I believe it serves the purpose. नेक्स्ट प्रोजेक्ट की चिंता, तो चिंता का वो बोलते हैं ना, क्या करोगे चिंता करके, कर तो वही रहे हो जो सामने है ना। चलो, any other question which is there? And so I'll wind up this HM today early because I need to rush for the batch. And I'm sure you got some insights today from what I said. Few insights again, हल्का सा recap कर लेते हैं so that you are there with me. Is the first insight is we all need some outside intervention. करो, कहीं से कुछ ना कुछ मेहनत करो, कुछ ना कुछ सीखो. It can be a book, right? See, you got to understand this, that we want to go to the higher shelf in life. तो जो हमें चाहिए ना, हमारी जो लाइफ से चाहिए, वो हमारा जहां हाथ पहुंच सकता है. अगर ये शेल्फ की बात कर रहा हूं, तो जो हमें चाहिए वो हायर शेल्फ पे है. तो हायर शेल्फ पे जाने के लिए क्या लगेगा? वी नीड अ स्टूल, क्योंकि हमारे हाथ नहीं जा रहे वहां तक. वी नीड अ स्टूल टू स्टेप ऑन, एंड देन वी कैन गो टू द हायर शेल्फ एंड वी गेट थिंग्स देयर. तो जो हमें बॉडी चाहिए वो हायर शेल्फ पे है, जो हमें बिजनेस में ग्रोथ चाहिए वो हायर शेल्फ पे है, जो हमें रिश्तों में आगे और चाहिए, मजा चाहिए, वो हायर शेल्फ पे है, जो हमें अपनी आदतों में कुछ चाहिए, सुधार चाहिए, वो हायर शेल्फ पे है. तो उस हायर शेल्फ पे जाने के लिए हमें नीचे एक स्टूल लगेगा, एंड द स्टूल इज द इंटरवेंशन ऑफ समबडी. द स्टूल इज द नॉलेज व्हिच वी नीड टू गेट फ्रॉम सम बुक्स. तो आप कौन से स्टूल पे खड़े हो, ये आपको पूछना. जब खुद से नहीं हो रहा तो फिर स्टूल लगेगा ना. ले आओ स्टूल यार. कभी कहीं फ्री में मिल जाता है, कभी कभी खरीदना पड़ता है, कभी वो एचएम में मिल जाता है, कभी किसी तक किताब के रूप में मिल जाता है. बट वी ऑल नीड दोस स्टूल्स टू मेक अस गो टू द हायर शेल्फ, एंड दैट्स वेयर आवर फ्यूचर लाइज. द फ्यूचर इज नॉट इन द शेल्व्स व्हिच वी हैव इन आवर रेंज. द फ्यूचर इज द हायर शेल्व्स, जहां पर हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा, वहां हमारा भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है. So let people help you reach there. So it seems the HM was for me. Yes, watch it again and watch it in the academy. You can log into MG Academy. You will have all the videos for the last so many HMs there. Hundreds of videos are there in the MG Academy. Sign up for that. ₹1 a day will not be much of a problem for all of you. Thank you, Rachna, for that insight. One thing at a time. Absolutely. Even the likes of Sachin Tendulkar, he was known as the god of cricket with all the ability and capability. Mansi, listen to this example and you will understand कि Sachin Tendulkar हो या अपने विराट कोहली हो या जो भी आप बैट्समैन ले लें दुनिया भर के, so with all the capabilities, even those skilled batsmen, अगर हमने उनको 2 बॉल एक साथ डाली, तो उनकी काबिलियत के बाद भी वो 2 बॉल नहीं खेल पाएंगे. उनको समझ नहीं आएगा कौन सी बॉल पे फोकस करना है. With all that which they are, they being Sachins, they being Virat Kohlis, still they would not be able to play the balls if the number of balls are more than 1. तो हम कौन से कोहली हैं यार, हम कौन से सचिन हैं, उसके बाद भी हम 2-2 बॉल 3-3 बॉल खेलने को बैठे एक साथ में, और फिर हम कह रहे हैं यार रन नहीं बन रहे. अरे बाबा, आउट नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ी बात. So play 1 ball at a time, 1 ball at a time. That's the rule of the game. You cannot play 2 balls at a time. Sir, we need to focus. Sir, have you written any book? हाँ, HM लेना बंद करूंगा तो book लिखूंगा मैं अभी. Yeah, that is one. तू मुझे मत तंग कर अरसू, ये एक bottleneck है मेरी लाइफ का. I have been on writing a book for long. नहीं हो रहा है, करता हूँ, टाइम बहुत चाहिए उसके लिए, ये सब बंद करना पड़ेगा मुझे. थैंक यू श्रीपाल फॉर दैट. मल्टी हैट्स का यार ये जो ना बड़ा कॉन्सेप्ट है नरेंद्र. मल्टी हैट्स का मतलब ये नहीं
कि हम मल्टीटास्किंग का, देखो जैसे मल्टी हैड मल्टीटास्किंग कॉन्सेप्ट गोइंग ऑन। चलो तुम्हारी ये मैं एक मिसकंसेप्शन भी दूर करता हूँ, मेरी बात को सुनो जरा। ये मल्टी हैट एंड मल्टी या मल्टीटास्किंग, मल्टी हैट का मतलब क्या है कि, या मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है, वी आर डूइंग मेनी जॉब्स। इट डज नॉट मीन वी आर डूइंग मेनी जॉब्स एट वन टाइम। It means we can do many jobs, but we can only do one job at a time, right? We are not doing multitasking कि हमने एक काम भी करा, उसका ये भी कर रहे हैं, उसका ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं. It is one job at a time, but we can do many jobs. That's multitasker. It is not same time multitasker. It is one time one task, but many tasks at different times. Okay. Should we do multitasking, which is opposite to focus on? मैंने बताया ना, एक बार में एक ही बॉल. You can be a fielder, you can be a bowler, you can be a wicket keeper at the same time, but you cannot be all the three at one time. तो धोनी बैट्समैन भी है, धोनी कैप्टन भी है, धोनी विकेट कीपर भी है, बट वो जब बैटिंग करता है तो विकेट कीपिंग नहीं करता, जब विकेट कीपिंग करता है बैटिंग नहीं करता ना. लक्ष्य झाला का. Love you, Kiran. Thank you so much, sir, for giving in us a weekly boost. कुछ करो, कुछ बनो. वो गाना था ना, कुछ बनिए, कुछ करिए. किरण के नाम से लॉगिन करने वाला श्याम भाटिया. थैंक यू. लव यू श्याम. लव यू किरण.